interview Shreya Singh. Shreya Singh has been recommended 2 times consecutively out of her 5 attempts. But her journey is not as simple as it sounds. In her first 3 attempts, she got screened out and conferenced out. I know that there are so many videos on YouTube of recommended candidates. So, what is different about this one? This one is not just a video, it is the emotional roller coaster ride that every aspirant faces during their SSB preparation. And hence, in this interview, Shreya not only talks about why she did not get recommended, but also what she did to get recommended. But most importantly, after going back home disappointed, how she came back stronger and made it to recommendation. Hello, everybody. Welcome to the session. Today we have Shreya. She is 2 times recommended. So why we have her on the session is not because she is going to tell you how to do it and what you should do and what wonder she has done, but to know her story about how she could not make it 3 times and what is it that she did to make it consecutively in the next 2 times. Such stories inspire us to learn from her mistakes and so that we don't commit the mistakes. So over to you, Shreya. We are here to listen to what you have made mistakes and what you corrected so that my students don't make the same mistakes. Thank you so much, Divya. I'll go on with the session. First time I was screened out, as you all know. Then the next attempt I was conference out. In that attempt, I was conferenced out because I was not very well aware with the process of SSB. I was not properly knowing what psychology test demands, how should we behave in the SSB interview, and how should we go on with the group in the GTO. That is why I was conferenced out, simply because I was not aware of the process. I had not seen many videos of former officers or recommended candidates. I had no interaction with anyone who has made it or anyone who was connected with the process. And myself also, I was not very curious to go through everything properly in depth. That was the simple reason why I could not make it in that attempt. In the next attempt, which was 2 months away, like I got conferenced out on in October, and then in January first week was my attempt for CDS, and I had 2 months straight. When you get conferenced out, you are very sad and broken, and everyone, every aspirant thinks about two, matlab, goes through two thought process. First is ki maybe I'm not made for it and gives up. There are people who think that maybe I'm not made for it and gives up. And then there are second type of people who first become sad and sad, but then think and find out the reason why they could not make it, and then they start preparing for the next attempt. First thing is ki you all should be that kind of person. Honestly talk to yourself, find out the reason why you could not make it, and then start working on it. And believe me, don't start asking your friends or anyone else ki yeah, what do you think, why I could not make it. If you just sit with yourself in a room for half an hour and honestly listen to the voices inside your head, you will definitely know कि भाई यार ये गड़बड़ की थी मैंने, या फिर मैं इंटरव्यू में ये चीज नहीं बता पाया था. No matter कि you come out of your interview and talk to everyone in SSB कि यार मैंने तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया. Your heart knows कि तुमने किस तरीके से बताया, कितना पूछा गया था, और तुमने किस चीज पे अंदर नहीं बताया. बाहर आके हम सब झूठ बोलते हैं. मैं लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे कि कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता है जो अपने इंटरव्यू से बाहर आके एग्जैक्टली वही बताता है जो उसके साथ इंटरव्यू में हुआ है. और सुनो, हम लोग बता देते हैं ना जो पहली बार, बिलीव मी हमको वही याद रहता है. जैसे कि मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था, एक्चुअल में मैंने इंटरव्यू में क्या किया मुझे वो नहीं याद है, लेकिन मैं रूम से निकल के जो लड़कियों को बताई थी, 6-7 लड़कियां मुझे घेरी हुई थी, तो मैं ऑब्वियस है उनको सब अच्छा अच्छा बताऊंगी. तो मुझे वो अच्छी अच्छी चीजें याद है, और मैं ये भूल ही गई कि मेरा एक्चुअल एसएसबी में क्या हुआ था. और वो मेरे लिए इतना मेरे अगेंस्ट काम किया कि मैं अगले अटेम्प्ट में अपनी एक्चुअल वीकनेस नहीं जान पाई. मैं इसी चौड़ में चले गई कि मेरा इंटरव्यू तो अच्छा है, जबकि एक्चुअल में वो अच्छा नहीं था. इसलिए फर्स्ट स्टेप, बी ऑनेस्ट. तो अब मुझे 2 मंथ्स का टाइम मिला था अपने एसएसबी के लिए, और मैंने तुम लोग को बताया था एक और सेशन में कि मैंने दिन रात एक करके उस एसएसबी के लिए बहुत ऑनेस्टली प्रिपरेशन की. ऑनेस्ट प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट प्रिपरेशन का मतलब है कि एक्सटर्नल सोर्सेस के बिना खुद से बैठ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना. कैसे? खुद से लिखना कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, एजुकेशन को ऑनेस्टली लिखना. ऑनेस्टली लिखने का मतलब, अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो अगर तुमको बायोलॉजी पसंद था, भले तुमने मैथ्स ले लिया,
तो सोचो, याद करो कि बायोलॉजी क्यों पसंद था। मुझे बायोलॉजी पसंद था, मैंने मैथ्स ले लिया था, और मैंने इंटरव्यू में बताया था कि सर मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पसंद था। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तुमने मैथ्स क्यों ले लिया श्रेया? तो मैंने फिर बताया था सर क्योंकि मुझको इंजीनियर बनना था, लेकिन पसंद बायोलॉजी ज्यादा था। तो बोले क्यों? तो मैं बोली सर मैं बहुत जल्दी रट लेती हूँ कुछ भी, तो मुझको एक एक चीज बायो की याद हो जाती थी और मैं सारे बच्चों पे भाव खाती थी। और ये मैंने इंटरव्यू में बोला है कि मुझको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चप्पा चप्पा रट जाता था और मैं फुल स्कोर करती थी। तो मैं क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर करती थी, और मुझको जिस चीज का अप्रिसिएशन मिलता है मुझे वो चीज पसंद होने लगती है। रीजन मेरा क्लियर है, मुझे अगर कोई अप्रिशिएट कर देगा कि ओके श्रेया ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं उस चीज को और बेटर करती हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। तो ये रीजन मैंने उनको दे दिया, इसमें कोई झूठ नहीं था। ये होती है ऑनेस्ट प्रिपरेशन। अपने पूरे पीआईक्यू जो फॉर्म है ना उसको छान मारना। साइकोलॉजी पूरा यूट्यूब पे तुम एक बार गूगल पे इफ यू टाइप ना पीपीडीटी इमेजेस, 50 से कम नहीं आएंगी। फिर भी लोग अपने दोस्तों से और रिकमेंडेड लोगों से बोलते हैं कि इस तरीके आप पिक्चर भेज दोगे कि आपकी एसएसबी में कैसी आई थी। ये कैसे क्वेश्चंस हैं? ये कौन लोग होते हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पीपीडीटी में कैसी इमेजेस आई थी उस सेंटर पे, इलाहाबाद में जीडी में क्या आया था? ये कैसे क्वेश्चंस है? एकदम जनरल टॉपिक्स होते हैं। हर एसएसबी में वही जीडी होती है, एजुकेशन पे, वुमेन पे, क्लाइमेट पे, और ये कुछ 3-4 डोमेन्स हैं जिसपे आपका ग्रुप डिस्कशन होना है। तो सुनना, तो मैंने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, एकदम प्रॉपरली। जितने जनरल टॉपिक्स हो सकते हैं ना कंट्री से रिलेटेड, गरीबों पे लाइक पुअर पीपल, उनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कोविड चल रहा था तो कोविड पे, वैक्सीनेशन पे, और डिफेंस जिस भी एसएसबी के लिए जा रही हूँ, जैसे आर्मी के एसएसबी जा रही हूँ तो आर्मी के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। अब सब कुछ मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं सिविलियन हूँ, लेकिन मैं रैंक तो याद कर सकती हूँ ना। मैं कमांड्स और वो कमांड्स का लोकेशन क्या है याद कर सकती हूँ। मैं यूनिफॉर्म की फोटोज देख सकती हूँ कि इस बैच का क्या मतलब है और इस बैच का क्या मतलब है। मैं ये तो देख सकती हूँ ना कि अच्छा ये अर्जुन टैंक है, अच्छा ये इधर ही बन रही है, या फिर टैंक कौन से हैं, आर्टिलरी में क्या होता है, इन्फेंट्री में क्या होता है। इन चीजों को ऑर्गेनाइज करके नोट्स बना सकती हूँ ना, वो मेरे हाथ में है। मैंने वो सब किया, ठीक। और मैं गई जनवरी में, बिलीव मी इट, आई गेव माई बेस्ट एंड आई डिड नॉट गेट रिकमेंडेड, क्लियर कट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। और मोर देन एनीथिंग इन माई लाइफ दैट अटेम्प्ट टुक मी, मतलब इट मेड मी थिंक फॉर वंस कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, बिकॉज आई वॉज लाइक आई गेव माई बेस्ट, आई वॉज द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ ऑल। पीपल से यू वन डे बिफोर योर कॉन्फ्रेंस कि यार श्रेया यू विल मेक इट, आई न्यू कि आई वॉज द बेस्ट, स्टिल आई कुड नॉट मेक इट। तो मे बी वो आता है ना एटीट्यूड, मतलब क्या बता मैं इससे भी कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ। मैं वो भी सब सोचने लगी कि मैं तो एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो सब मेरे दिमाग में घूमने लगा कि मैं मे बी या तो एक्टर उक्टर बनने के लिए बनी हूँ या तो सीधे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। क्या पता मैं इस चीज के लिए बनी नहीं, क्योंकि मैं नीचे नहीं सोचती हूँ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो उससे भी ऊंचा सोच लेंगे कि अबे मैं इससे भी ऊंचा, और एक ये सोच लेंगे कि यार मुझको कोई छोटा सा काम कर लेना चाहिए। दोनों गलत हैं। मतलब अगर आपको सच में फौज में जाना है तो दोनों गलत है। आप मेहनत करो, आप अपने लास्ट अटेम्प्ट तक एसएसबी दो। तो मुझे कुछ टाइम तक तो आई थॉट कि नॉट मेड फॉर इट, बट देन आई वॉज वेरी अटैच्ड, माई फ्रेंड्स वर गेटिंग देयर, एंड एक बार वो अटैचमेंट हो गई। तुम लोग सब बताओ, आर यू गाइज अटैच्ड? डू यू रियली वांट टू जॉइन द फोर्सेस? Yes, नवनीत, ma'am. is there anything, Yes, any ma'am. reason why you don't want to do it? Any reason? No, ma'am. I ठीक। asked you guys one question. Do you have any backup plan? कि ये नहीं तो मन में कहीं चल रहा है कि आईएएस कर लेंगे, कहीं चल रहा है पीसीएस, एनीबडी लाइक दैट? नहीं लगा तो कॉर्पोरेट जॉब कर लेंगे, किसी के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है? No, ma'am. नहीं, तो ये एक ही चॉइस है, ओवर टू यू, एक ही चॉइस है, इसी पे मेहनत करनी है। पता है जो प्लान बी है ना एसएसबी के लिए, मतलब मेनी पीपल हैव सेड कि इफ यू डोंट हैव अ प्लान बी, मैं बताती हूँ प्लान बी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी का पर्पज ही यही है कि मैं रिकमेंड हो जाऊं, इसलिए प्लान बी चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि प्लान बी चाहिए। मैंने प्लान बी का आंसर पूरा प्रिपेयर किया, सीएपीएफ चले जाऊंगी तो डीआरडीओ चले जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहां जाना नहीं था। पर मुझे ये पता था कि यार इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका प्लान बी नहीं है, ये बहुत डेस्परेट है। तो उस चीज के लिए आप प्लान बी भी बनाओ। और सिर्फ बनाओ मत, आप फौजी बनना चाह रहे हो, आप उस प्लान बी की तैयारी भी करके रख लो। ठीक है आईएएस मत बनाओ, लेकिन किसी छोटे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके रख लो, किसी प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट लेके रख लो। नहीं प्लेसमेंट हुआ है, 4 लाख का पैकेज का जॉब मिल रहा है, उस पर अप्लाई कर दो। ठीक। क्यों? क्योंकि एसएसबी में रिकमेंड होना है।
तो मैंने ये सारी चीजें किया, मैं बाहर हो गई, मुझे बहुत टाइम लगा, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट आपको आपका आंसर जरूर मिलता है लाइफ में। ह्यूमन रिलेशंस अगर आपके खराब हो रहा है, करियर आपका खराब हो रहा है, तबीयत अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ये 3 चीजें जो हमारी वर्स्ट हो सकती है, ठीक? ड्रीम्स, ह्यूमन रिलेशंस एंड हेल्थ, इन तीनों का रीजन आप ही होते हो और आपको पता होता है, ठीक? आप 90% केसेस में आप ही होता है, आपको पता है कि उस दोस्त से मेरी बात इसलिए नहीं हो रही है कि या तो उस इंसान में भी कमी होगी, लेकिन कुछ अपनी भी होती है, उसको एक्सेप्ट करो और झुक जाओ, दोस्ती में आगे बढ़ के जाओ। हेल्थ में अगर आपका सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, पक्का तुमने एक टाइम सही से नहीं खाया होगा या कुछ खा, एक्सेप्ट करना होता है, ये नहीं कि यार मेरा पेट क्यों दुख रहा है। तो सेम चीज ड्रीम्स में है, अगर आप करियर में फेल हो रहे हैं तो द रीजन इज यू एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो इन दैट अटेम्प्ट, नो मैटर आई गेव माई बेस्ट, आई वॉज स्टिल नॉट सेलेक्टेड एंड आई सेट एंड देन आई गॉट द रीजन कि आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड बट माई एटीट्यूड वॉज नॉट राइट। अगर मैं यूपीएससी देने जाती पूरे प्रिपरेशन से तो मैं रिटर्न निकाल लेती, ठीक है? लेकिन एसएसबी आप सिर्फ प्रिपरेशन से नहीं निकाल सकते हैं। टू क्रैक एसएसबी यू नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड, माइंडसेट, बिहेवियर एंड दैट काम भी, मतलब जो कामनेस चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है। तो सुनो, एसएसबी 2 ही पार्ट में क्रैक होती है, और उस 2 पार्ट का जो फर्स्ट स्टेप है ना, दैट इज प्रिपरेशन। कई लोगों के पास राइट एटीट्यूड, कामनेस सब कुछ है लेकिन प्रिपरेशन नहीं है, और कई लोगों के पास प्रिपरेशन है लेकिन राइट एटीट्यूड नहीं है। अगर तुम इन दोनों चीजों को बैलेंस कर दोगे तो तुम्हारा एसएसबी निकल जाएगा। तो मैंने उस अटेम्प्ट में ये रियलाइज किया कि मैंने बहुत, मतलब प्रिपेयर तो कर लिया है, पर अभी भी मेरा एटीट्यूड सही नहीं है। ये जो एटीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या एटीट्यूड था? तुम लोग को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट मेरे साथ ऐसा केस था। मैं ऐसे आधे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको जिद होती है कि उनको वो चीज चाहिए, ठीक है, और वो जल्दी हारे नहीं होते हैं। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो हमेशा विनर रही है, तो मुझको हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और मेरी जिद हो गई थी कि मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है। लेकिन उस अटेम्प्ट में मुझको रियलाइज हुआ कि मैं जीतना किससे है, हराना किसको है। 10 लड़कियां भी रिकमेंड हो जाए मैं तो भी रिकमेंड हो सकती हूँ, और कोई भी ना रिकमेंड हो मैं तो भी रिकमेंड हो सकती हूँ, क्या पता पूरी बैच वॉश आउट हो जाए। मैं ऐसे एग्जाम देने जा रही हूँ जहां पे मुझे किसी को हराना नहीं था, लेकिन मेरा जो एटीट्यूड था ना श्रेया का, इट वॉज लाइक आई हैव टू बी द बेस्ट, आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द बेस्ट। ये मैंने सीखा। कुछ लोग में भी तुम में से ऐसे होंगे जो अपना एकदम कम दे के आ रहे होंगे, मतलब अंडर प्रेशर, कि मतलब अंडर प्रेशर एंड नर्वसनेस वो अपने ओरिजिनल से बहुत कम पोर्ट्रे करके आ पाते हैं, और मैं अंडर प्रेशर एंड नर्वसनेस अपने ओरिजिनल से बहुत ज्यादा पोर्ट्रे करके आ रही थी। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। आई डोंट हैव टू टेल एनीवन कि आई एम कॉन्फिडेंट, I have to just be myself. If I am confident, he will know. And if you are a bit underconfident, accept it and just tell yourself कि why am I underconfident? अपनी आप से रीजन पूछो। अगर तुमको लगता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो इसलिए तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो तुमको पता है दैट्स फुलिश। अगर तुमको लगता है कि तुम गरीब हो और तुमको अंडर कॉन्फिडेंस है तो दैट्स फुलिश। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी मिसिंग है तो वर्क ऑन इट। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान को अंडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर तुम लिख लोगे ना पेपर पे कि वाई वॉज आई अंडर कॉन्फिडेंट, तो उस चीज का सॉल्यूशन जरूर होगा। आरुषि बबूल, आरुषि है ना ग्रुप में? Yes, आरुषि, यू ma'am. सेड you were under confident. Why were you under confident? Can you tell me that reason? Honestly, we are all listening. Ma'am, as far as SSB is concerned, I was not prepared much. So that was the reason. सी हाउ ऑनेस्ट, आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और पता है प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी होती है? थोड़ा सा स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट इन द सेंस, आप लेक्चरेट मत प्रिपेयर करो, मुझे ऐसा लगता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी नवनीत ने कहा कि मेरा लेक्चरेट अच्छा नहीं हुआ, आपका लेक्चरेट एकदम खराब हो जाए, आपको वो कभी जीटीए नहीं सोचेगा इसका तो लेक्चरेट ही खराब हो गया, इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, नेवर। व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इन एसएसबी, एंड सब चीज का अलग पैटर्न है। आपको बैठ के 3 मिनट लेक्चरेट की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ये पढ़ना है कि ये सार क्या होता है। अच्छा, बस फुल फॉर्म रट लेना और बाकी चीजें प्रिपेयर मत करना कि 3 मिनट में सार को याद कर लेता हूँ शीशे के सामने बैठ के, नहीं। पर हाँ, एक ऐसी चीज शीशे के सामने प्रिपेयर करनी है, शेयर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जबकि अपने बारे में तो पता ही है, फिर भी प्रिपेयर करना है, ताकि उसको ये न लगे कि इसको तो अपने ही बारे में नहीं पता है।
इसको सार्क के बारे में नहीं पता है, सार्क से मेरा क्या लेना देना है, बीमस्टेक से मेरा क्या लेना देना है। मैं ये वाला टॉपिक उठा लूंगी कि अबाउट माई पेट, अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, अबाउट माई ट्रेन जर्नी, जो सबसे इजी टॉपिक होगा ना लेक्चरेट का, वो उठा के बोल देना। मैं दोनों रिकमेंडेशन में वही टॉपिक बोली हूँ, सबसे इजी टॉपिक है ना, आई एम रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये मिथ हटा दो। तुमको प्रिपेयर क्या करना है, तुमको जीपीई प्रिपेयर करनी है। क्यों? क्योंकि 10 मिनट का टाइम मिलता है लिखने के लिए, और दिमाग का कचरा हो जाता है उस 10 मिनट में, इतनी सारी चीजें करनी होती हैं। पर उसकी प्रिपरेशन करो, जीडी की प्रिपरेशन मत करो। तुम कैसे जीडी की प्रिपरेशन कर लोगे? 10 वहां पे अगर चूतिया मिल गए तो तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम खराब। 10 लोग लाउड मिल गए तो एकदम अलग अप्रोच, 10 डल लोग मिल गए तो यू हैव टू बी डिफरेंट। You can never prepare for a group discussion, but you can always prepare for रैंक स्ट्रक्चर क्या है, वॉर्स कितने हुए इंडियन आर्मी के, परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम याद कर लेता हूँ। अभी जो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है परसों, मैं ये देख लेता हूँ अगर एयरफोर्स के लिए जा रहा हूँ कि वो चॉपर कौन सा था। ठीक, पता है, नाम पता है उस चॉपर का? अगर पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये चीजें मैं दिमाग में, अच्छा ये चॉपर था। हम जो अब जा चुके हैं हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर एज एन एस्पिरेंट मन में ठान लो कि यार ये चॉपर था। इतने हाई पोजीशन पे जाऊंगा ना एयरफोर्स में कि मेरा इतना पावर रहे कि मैं बोल सकूं कि ये नहीं आएगा रशिया से खरीद के। मैं ये सोची हूँ कि मैं टेक्निकल ऑफिसर बनने जा रही हूँ। जब मैं बन जाऊंगी ना, अगर प्रमोट होते होते विंग कमांड, इतना से होना चाहिए मेरा कि मैं जहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हो एयरफोर्स के, वहां बोल सकूं कि ये नहीं आएगा। क्योंकि सारे युवा बैठ के फेसबुक पे और इंस्टा पे और यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग बीसी लेते ही क्यों है, ये वाला चॉपर। वहां जाके डिसीजन मेकिंग में जब है ही नहीं, हमारे पास सेटअप नहीं है, चीजें नहीं है, उस वहां तक पहुंचने का मैंने सोचा है। तुम भी सोचो कुछ, अपने आप को डिफेंस से एसोसिएट करो, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। फिजिकली अपने रूटीन में, मेंटली जीपी प्रैक्टिस करो। जीपी प्रैक्टिस करते वक्त ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस अच्छे होने चाहिए, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एवरीथिंग शुड कम इन योर आंसर, ठीक है। इतना सिंपल तो है। मुझे अभी भी याद है हाउ स्टूपिड आई वाज इन द अटेम्प्ट व्हिच आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। बिलीव मी, जीपी आ गया है और एकदम मुझको टाइम ही नहीं मिल रहा था कैलकुलेट करने के लिए। कितनी इजी बात है ये, ध्यान से सुनना, कई लोगों के सर के ऊपर से चले जाती है। ये चश्मा है मान लो, ठीक है, और कोई कह देगा कि ये 1 किलोमीटर है, ये स्केल है, ये 1 किलोमीटर है, और वो इतने बड़े बोर्ड पे बना होता है। तो दूर से देख के मैं ऐसे अपने मन में अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ कि मेरे चश्मे से ना वैसे 10 हैं तो वो 10 किलोमीटर होगा। और 10 किलोमीटर अगर हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो इस इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। और 2 3 4 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो लोग, विक्टिम को उठाएंगे, गाड़ी में ला देंगे, ले जाएंगे, और इसी चीज को लिख देना है। पर यही काम को हम लोग घर पे नहीं करते हैं। वी जस्ट गो देयर इन एसएसबी एंड वी सेड कैसे आपका दिमाग वो चीज कर लेगा जिसके लिए वो ट्रेंड ही नहीं है। हाउ कैन इट डू इट? ट्रेन योर माइंड फॉर टास्क विच एक्चुअली रिक्वायर ट्रेनिंग। साइकोलॉजी में स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी में कैसे कैसे साइकोलॉजी स्टार्ट करना है, मैम वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्लासेस, बट आप जब तक नहीं तुम टिप ले लो, दिव्या मैम से भी ले लेते हैं, श्रेया मैम भी जो जो बता रही हैं लिख लेते हैं, यूट्यूब पे भाकुनी सर के भी वीडियोस देख लें, सारे कोचिंग का देख लें, और किसी भी दिन ईमानदारी से बैठ के 1 घंटा लगातार 12 स्टोरीज लिखी ही नहीं। और लिखने की स्टोरीज लिखते ही लोग रिकमेंडेड लोगों को खोजते हैं कि आप मेरे स्टोरी देख लोगे। तुमने खुद देखी वो 12 स्टोरी? कितने दुनिया में लोग हैं जो उस 12 स्टोरी को पेशेंस से, जब 12 हो जाती है, 1 गिलास पानी पी के आप बैठो और फर्स्ट पिक्चर खोलो और खुद देखो कि मैंने क्या लिखा है। बिलीव मी, तुम 90% खुद ही एनालाइज कर लोगे कि यार ये सेंट्रल कैरेक्टर ये क्यों ऐसा कर दिया। मैं अपनी स्टोरी खुद एनालाइज करती थी, इसलिए आज मेरे सामने 10 तरीके की स्टोरी ला दो, मुझसे अच्छी स्टोरी कोई लिख नहीं सकता, ये मैं बोलती हूँ। मेरी साइकोलॉजी इतनी टाइट है, मैं पिक्चर देखते ही बता देती हूँ इसका थीम क्या होगा, और एक नहीं, 2 3 4 कितने भी थीम। कैसे आया श्रेया में ये क्वालिटी मेरे अंदर कैसे आई है, मैं सबको बोलती हूँ मेरी एक्सपर्टी है, मतलब साइक इज माई एक्सपर्टाइज, किसी को भी बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ना, मैंने ये जो डायरी देख लेना, ऐसे मोटी मोटी 2 2 3 3 कॉपीज भर दी हैं सिर्फ लिख लिख के कहानी। अभी भी मेरे पास वो कॉपीज हैं, और मैं सोची थी कि जब मैं जाऊंगी ज्वाइनिंग पे तो मैं अपने जूनियर्स को वो कॉपी दे के जाऊंगी। इसलिए नहीं कि मेरी स्टोरीज चुरा लें, इसलिए कि बस ऐसे पेज घुमा के देख ले कि मैम ने इतनी लिखी थी। हमारी जब औकात होगी ना कि इतनी कॉपीज भर दे, तब जाएंगे एसएसबी देने। 2 स्टोरी लिख के लोग सोचते हैं मेरी स्टोरी अच्छी नहीं हो रही, ये कैसा सोच है? ये कोई थिंकिंग है? एक स्टोरी लिखने में 4 मिनट लगता है यार, तुम रोज आधा घंटा एसएसबी की तैयारी करो ना,
तो भी तुम 5 दिन में साइकोलॉजी की एक छोटी सी कॉपी भर दोगे। मेरी सिर्फ एक वैट की कॉपी थी, ए से लेके जेड तक जितने वर्ड्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, मैंने सब पे वैट लिखा था। और मैंने एक वैट नहीं लिखा था, मैंने हर वर्ड पे 3-3 वैट लिखा था। एक जो सबसे पहला वैट का सेंटेंस होता था ना, वो सेंटेंस सबसे घटिया सेंटेंस होता था। फिर जो दूसरा सेंटेंस होता था वो उसी का मॉडिफिकेशन होता था कि यार मैं ऐसा लिखूंगी। और तीसरा सेंटेंस में गूगल से कोई चेप इंग्लिश वाला मस्त एकदम नॉवेल वाला सेंटेंस लिखती थी। और एसएसबी जब जाती थी तो वो तीनों का मिला के कुछ मस्त सा सेंटेंस आता था और मैं वो लिख देती थी। मेरा वैट पहले से प्रिपेयर्ड था, कोई वैट का शब्द नहीं था जो मुझे नहीं, जो मेरे लिए नया था वहां पे, और सेंटेंस भी मेरे दिमाग में सेट था। पर इसको क्या चीटिंग बोलेंगे कि ये तो पहले से वैट? नहीं, वो मेरे ही तो वर्ड थे, मेरे ही तो थॉट्स थे। 15 सेकंड में मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, मेरा वर्ड का क्वालिटी भी अच्छा था। ठीक। वो जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिखा था कि मेरी मम्मी मुझको रोज डांटती है कि मेरा बेड ठीक नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझसे नहीं होता। मेरा बेड सामान बिखरा ही रहता है। मैं स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही भूल जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा मोबाइल और डिवाइस चलाती हूँ। मैंने लिखा था एसडी में, मेरे पापा, माई फादर इज वरीड अबाउट लॉन्ग आवर्स ऑफ यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, ही वॉन्ट्स मी टू स्टे अवे फ्रॉम इट। ठीक। अपनी कमियां मानो और अपनी मेहनत को इतना कर दो कि मेरा नहीं होता एसएसबी में। मेरे पापा को, मैंने अपने सारे दोस्तों को ये बोला था कि मैं किसी को नहीं बोलती थी इस अटेम्प्ट में रिकमेंड होंगी। मुझे अब तक याद है, साला 20 बार जाने को मिलेगा, 20 बार जाऊंगी। आखिरी अटेम्प्ट तक जाऊंगी, जब तक भगा ना दे सबके अबे जाओ बे तुमको नहीं लेंगे, तब तक जाऊंगी। ताकि मैं बड़े होके अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से ये कह सकूं कि मुझे फौज में जाना था और मैंने पूरी कोशिश की, पर उन्होंने नहीं लिया। तुम अगर ऐसा बोल सकते हो तब तुम सोच लेना कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी है, एल्स मत सोचना।